बाबू हेलो, बंद करो दरवाजा, क्लास चल। Okay, so we were at this position. So what is light dependent resistor? In last class we have discussed. Who will tell? Till now any doubt? Both CR is No, present sir. in the class. कोई क्वेश्चन है अभी तक? अरे बोलो बाबू, कोई क्वेश्चन है तो। No, sir. Okay. In a Saturday, I think we will have quiz. Okay. Yes, ठीक है? sir. Okay. So when light fall on this, okay, we have discussed this in last class also. On the device and the top of the device, the electron in the valence band of the semiconductor material are excited. Okay. To the conduction band, they will jump to the conduction band. What I am speaking, will you will get to know in the second module of this subject. Okay, because in the detail we will going to study. So in the physics you have, in the physics of 12th or 11th, you have gone through the property of the materials, how electrons are means arranged in a different cells. Okay, so when lights will fall, you must focus on that. When light will fall, okay, the electron in the valence band of this semiconductor material are excited to the conduction band. Okay, so more and more electrons are excited and jump to the conduction band, which results the very large number of carriers present in the conduction band. Okay, this will leads to what? This will leads to what? It will allow to pass the current, means start to conducting. Okay, so whenever now if you apply some current through the lead of this photocell or photoresistor, it will start conducting. Okay, I am asking, I am telling about like this. If lights will fall, okay, on this, then what will happen? There is a, suppose in the semiconductor, this is the energy band diagram. You must have read energy band diagram of any material in the 12th class, I think. Okay, so this is the energy band diagram. This we represent like this. Okay, so this is valence band, suppose energy level of valence band, and this is the conduction band. So earlier electron was here. Okay, now this to be a conductive material, in the conduction band there must have some electron present, then it will start conduct. Okay, so what is happening in conductors? These bands are overlap, मतलब ये वाला band और ये वाला band एक ही साथ होता है. But for semiconductor there is a gap between valence band and conduction band. It's some valence band electron needs some energy to go into the conduction band. Okay, external energy required. Same time for the insulator, there is a big energy requirement to go there. Electron from here to go there, it need more energy. Okay, we'll see in the later coming classes. Okay, for just now I am giving some brief. So that is why in conductor there is a no sorry, in insulator there is a no flow of current, because of this only, because
in the conduction band free electrons should be present. Okay, so what happening with this type of devices, when this exposed to the light, it energize the electron in the valence band and they will jump to the conduction band. Okay, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, अभी क्या होगा, ये कंडक्टर की तरफ बिहेव करने लगेगा, लाइक तो यहाँ से जो भी आप सप्लाई करोगे वो वापस से ऐसे आ जाए। ओके, तो जो जब ये लाइट के सामने एक्सपोज होगा तो ये इसकी, आपको पता है इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है बिकॉज ऑफ दिस ओनली। यहाँ पे इम्पटी कंडक्शन बैंड रहता है, सेमीकंडक्टर में भी इम्पटी कंडक्शन बैंड रहता है, बट वैलेंस बैंड को अगर थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो ये जम करके कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इसलिए इसका रेजिस्टेंस इससे थोड़ा कम रहता है। ठीक है? और एक होता है कंडक्टर मटेरियल जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, वो लो रेजिस्टेंस रहते हैं। इसी तरह से एट द बिगिनिंग इसमें बहुत हाई रेजिस्टेंस है, बट एज सुन एज कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो धीरे धीरे इसकी रेजिस्टेंस घटने लगती है। ओके, so ability to oppose the current also reduces, it's allowed to pass the current now. Okay, got the point? Yes, sir. अब कंस्ट्रक्शन कैसे इसका होता है? कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है कि लाइट सेंसिटिव मटेरियल है ना, उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट को सच एज सिरामिक को हम वो करते हैं, मतलब ऊपर से लेयर देते हैं। द मटेरियल is deposited in zigzag pattern in order to obtain the desired resistance and power rating. See here, the material is deposited in zigzag platform, like a zigzag pattern. Okay, so that we can achieve the required resistance. Okay, and power rating. Okay, this zigzag area, है ना, separate the metal deposit area in two regions. Ohmic region, है ना, on the other side of the area. The resistance of these contacts should be less as possible to make sure that the resistance mainly changes due to the effect of light on. Okay, हम ऐसा इसको मतलब क्या बोलते हैं बनाते हैं ताकि जो रेजिस्टेंस चेंज होगा इसमें वो ड्यू टू लाइट, जितना लाइट फॉल कर रहा है उसी के अनुसार इसका रेजिस्टेंस चेंज हो। हम इसको बिल्ड करते समय ऐसा प्रिकॉशन लेते हैं। ठीक है, सो कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? जनरली केडियम सल्फाइड, केडियम एंड इंडियम, लाइक दिस। ओके, इस तरह के मटेरियल को हम यूज करते हैं। ठीक, applications and others are also available. Okay. So everything is written here, you can go through that, the construction, the working principle, what we have discussed right now. Now see this. So this is the representation of this, and this was the how it will look physically. Okay. So here light will fall. Okay, this is the construction, this is the n type material, and at the corner we are using n plus n plus. We'll discuss what is this. Okay, so right now for you just see this. Okay, and this is the plot of illumination versus resistance, है ना, कैसे कैसे डार्क रहेगा तो रेजिस्टेंस काफी हाई है, जैसे जैसे आएगा डे लाइट में ऐसे ऐसे घटते जाए। ओके ना, सनलाइट में और घट जाएगा रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है, क्लियर? सो इफ वी, this is the
प्लॉट illumination versus resistance. When there is a dark, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा. जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल इंक्रीज, रेजिस्टेंस स्टार्ट टू डिक्रीज. ठीक है. तो रेजिस्टेंस देखो जनरली बहुत हाई रहता है, 10 to the power 8 लाइक दैट. ये 0 छूट रहा है. ओम मतलब लगभग मेगा ओम में है. स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग व्हेन देयर इज नो लाइट, व्हेन देयर इज डार्क. ओके. एप्लीकेशन क्या है इसका? वही लाइट सेंसर की तरह हम यूज कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट में यूज कर सकते हैं, अलार्म क्लॉक में यूज कर सकते हैं, बर्गर अलार्म में यूज कर सकते हैं, है ना. लाइट इंटेंसिटी मीटर भी बना सकते हैं इससे, है ना. तो दीज आर द फ्यू एप्लीकेशन यूजिंग द लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर. सर हम्म. जो स्ट्रीट लैम्प सर हम लोग नाइट में अपने आप जल जाएगा और मॉर्निंग में अपने आप क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना सर. मान लेते हैं सर बादल छा जाएगा दिन में, तो उसमें काम करेगा? हाँ, कुछ फ्यू मतलब वो केसेस आपको डिजाइन करना पड़े, है ना. जैसे बादल छा गया बट डे लाइट है ना. ओके. एक लाइट होता मान है लीजिए सर नहीं है. रात, और एक होता है जैसे मान ले बादल भी छा गया तो आप बाहर जब निकलते हो तो आपके पास देखने के लिए कुछ लाइट रहता है ना. ऐसा तो नहीं कि पूरा डार्क हो जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है. रेयर केस अगर ऐसा हुआ तो. रात के लाइट में और डे लाइट में अंतर है ना. कितना भी जितना अंधेरा उसको होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए उतना तो मिल ही जाएगा सर. हाँ. ओके. तो उतना रेजिस्टेंस आपके पास रहेगा जब तक ये इतना रेजिस्टेंस आपके पास ना आए. आप ऐसा सर्किट डिजाइन करोगे कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 to the power 8 रहे, तब तक वो क्या रहेगा? तब क्या रहेगा बोलो. तब तुम क्या डिजाइन करोगे कि ये जल जाए. ओके. और जैसे ही लाइट पड़े या लाइट आएगा, सपोज थोड़ा सा भी लाइट सेंस होगा, सपोज इसके नीचे 10 to the power 3 आ गया सपोज रेजिस्टेंस, तो तुम्हारा ऑफ हो जाए. ऐसा डिजाइन कर लो. अब कितना भी बादल आएगा, कुछ भी आएगा, तब भी वो ऑफ ही रहेगा. तब तक नहीं जलेगा जब तक रेजिस्टेंस नियर अबाउट 10 to the 8 ना पहुंच जाए. ये कब होगा? जब पूरा डार्क हो जाए, मतलब उस सेंसर के ऊपर कोई डे लाइट का कुछ चीज नहीं आने वाला. आफ्टर like 6 PM 6:30 like that environment. Okay, got the point? यस सर. कोई डाउट है? बोलो बाबू, कोई डाउट है टिल नाउ? नो सर. Okay, so we'll go ahead and we'll, in the syllabus there is a thing written as integrated circuit. Okay, ICs. So what is IC? Next topic. What is IC? Who will tell? A small, एक्चुअली ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो स्मॉल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पे बिल्ड किया हुआ है, विच इज फॉर परफॉर्मिंग अ सर्टेन फंक्शन एंड टास्क. ओके. कोई भी सर्किट है, कोई भी सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो एक छोटे से सेमीकंडक्टर मटेरियल पे बिल्ड किया गया है टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, दैट इज कॉल्ड एज ए इंटीग्रेटेड सर्किट. क्लियर? समझ में आया मैं क्या बोला? यस सर. कोई एक सर्किट है, बहुत सारा चीज उस पर लगा हुआ. सपोज ऐसे एक सर्किट है, डायोड लगा हुआ है, ऐसे करके एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ना. इससे बन नहीं पाया. एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जैसे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, आगे जाके और भी कुछ स्मॉल स्मॉल चीज लगा हुआ है. ठीक है.
कैपेसिटर एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है. Like this huge circuit is there. Now this circuit, total circuit, is built on a small piece of semiconductor material for the doing of a specific task is called as a what? Integrated circuit. Okay, ये जो आप देख रहे हो ऐसा कंस्ट्रक्शन इसका, ओके, इसके अंदर सर्किटरी है. ये ऊपर से क्या किया गया है? पैकेजिंग किया गया, पैकिंग किया गया, ताकि जो भी कंस्ट्रक्शन अंदर है वो डैमेज ना हो, जेब में भी लेके जाए तो वो मतलब खराब ना हो, है ना, या और कभी सर्किट में यूज करे तो इस मतलब खराब ना हो, इसके लिए ऊपर से इसको क्या किया गया, पूरा पैक कर दिया गया. सिर्फ उसका इनपुट जैसे ऐसे, ठीक है, अगर ये बॉक्स की तरह देखो तो तुम लोग, तो क्या होगा, सिर्फ इसके कौन से पिन्स बाहर रखे गए हैं, इनपुट्स के पिन और आउटपुट के पिन. ओके, ये देखो इनपुट्स के पिन या आउटपुट के पिन, जो भी पिन्स है इसके अंदर वो वही आपको दिखेगा, बाकी इंटरनल जो सर्किटरी है वो आपको नहीं दिखेगी. बट इस पे नंबर्स रहते हैं, जैसे 7004. अभी हमको पता है कि 77004 क्या है, ओके, और 7004 में कौन सा पिन को इनपुट देना है और कहां से आउटपुट देना है, ये हमको पता है, पता रहता है. ओके, बट ऐसे ही आप देख के, मतलब ऐसे ही कोई आईसी देख के आप नहीं बता सकते हो कि वो क्या काम करता है, इसीलिए उस पे नंबर स्पेसिफाई किया गया है. आईसी का नंबर रहता है, वो नंबर पता करके हम ये बता सकते हैं कि उसका काम क्या है, इनपुट कहां से देना है उसको और कहां से आउटपुट लेना है. ओके, व्हाट द पॉइंट? Sir, generally ICs are very small in size, na sir? हाँ, बिल्कुल. That is why I am telling very big circuit if you build on a small semiconductor material, okay, to perform a specific task is called as IC. इसमें आपको ऐसे पिक्चर में बहुत बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा नहीं. ओके, गॉट द पॉइंट? सर इसका पर्पस क्या है सर लगाने के पीछे? पर्पस, सपोज यस. तुम्हारे पास एक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ओके, सपोज इतना बड़ा एक आपके पास पीसीबी है मान लेते हैं, ठीक, ओके, इस पे एक बहुत बड़ा सर्किट बना है, इतना बड़ा कवर किए हुआ, आपके पास इतनी स्पेस, ओके. तो अगर वो जो सर्किट था, कॉन्सेप्ट देखो, वो जो सर्किट था जो इतना बड़ा है, उसको अगर हम इतने छोटे से में अरेंज कर दे तो मेरे लिए कौन सा यूजफुल? छोटा जो सर स्पेस ले रहा है, कम स्पेस smaller one. स्मॉलर वन. ओके, दैट इज वाई इफ यू सी, पहले जो कंप्यूटर होता था वो कितना बड़ा होता था? एक रूम भर के. एक जब रूम पहले रहा. कंप्यूटर बनाया गया था तो पूरा एक रूम भर के था. नाउ व्हाट वी आर सीइंग, आवर हैंड, at our hand we are using that all the function what they have performed at that time, we are using lakhs time more performing all the function, taking picture, processing, everything is done at the tip of your finger. So this is the, then how and what is the advantage you have asked, na? Okay, छोटे से जगह में उतना बड़ा चीज को हम, सेम वही सर्किट है, हम उसको छोटे से जगह में कर, जैसे होता है ना, एक बड़ा कोई एक चावल पे गणेश भगवान का बनाता है और मतलब क्या बोलते हैं, मूर्ति बना के और बोलता है कि देखो चावल पे कैसे, और एक बहुत बड़ा मतलब मूर्ति डिजाइन कर, तो दोनों में अंतर है. मतलब मूर्ति तो सेम है बट एक बहुत बड़ा जगह लेगा और एक छोटा सा जगह लेगा. समझ रहे हो? एंड दिस हैपन बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द योर मटेरियल्स, मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल हैज डिक्रीज ड्रास्टिकली. ओके, नैनो रेंज में अभी ट्रांजिस्टर का फैब्रिकेशन होता है. ये जो आप इतना बड़ा चीज देख रहे हो ना,
ये नैनोमीटर में फैब्रिकेट होता है, ठीक है, जिसको आप नेकेड से देखने में भी दिक्कत है आप एक ट्रांजिस्टर। इसी तरह से लाखों ट्रांजिस्टर इसमें बिल्ड रहते हैं। कोई एक प्रोसेसर है अगर कंप्यूटर का, या कोई आईसी है, तो उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर, बहुत सारे कैपेसिटर ऐसे करके बिल्ड रहते हैं। फिर एक आईसी का, एक इंटेंडेड फंक्शन के लिए एक आईसी का डिजाइन किया जाता है। Am I clear? समझ में आया मैं कुछ बोला तो? समझे? जो क्वेश्चन पूछा था, क्या नाम है बाबू? सर इसके लगाने के पीछे मकसद क्या है सर? वो तो सब ठीक है, मान लीजिए कि साइज छोटा कर दिया, लेकिन पीछे मकसद कुछ होना सर? मकसद किस चीज यस का अच्छा रुको तुमको बता। आईसी का सर मकसद है ना, इसके पीछे लगाने का रीजन कुछ होगा ना सर, कि हम लोग क्यों लगा रहे हैं? आईसी, अरे यस बाबू सर। तुमको अगर घर में पानी चाहिए तो चापाकल लगाओगे ना। यस सर। तुमको अगर कोई सर्किट चाहिए, मतलब तुमको कुछ काम चाहिए उस सर्किट से, कोई एम्पलीफायर चाहिए, तो तुम बनाओगे ना एम्पलीफायर, कि नहीं बनाओगे? बनाएंगे सर। तो इसका काम यही है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आईसी को डिजाइन किया गया है। ओके, गॉट द पॉइंट? यस सर। समझ में आया? नहीं यस आया? सर। सर आईसी हाँ, जो है वो किस लिए, यानी क्या काम करता है सर? जैसे स्विच ऑन ऑफ करता है ना, इसी तरह आईसी क्या काम करता है? मेन एक बताइएगा ना सर। हाँ, मेन वही तो बता रहे हैं कि देखो ये जो सर्किट है, सपोज ये सर्किट को देखो तुम, ये सर्किट काम करता है एंड की तरह, ठीक? ये जो सर्किट तुम देख रहे हो, ये किस तरह से काम करेगा? एंड की तरह। एंड समझते हो? एंड गेट, नॉट गेट। हम्म, नो सर। 12th में भी नहीं पढ़े थे? नो सर। 12th में भी नहीं पढ़े थे? 12th पढ़ा ही नहीं है सर, 10th के बाद डिप्लोमा, उसके बाद डिप्लोमा में तो पढ़े क्या होगे। बोले सर आप? एक बार इसको अच्छा से बताइए ना, क्या क्या नोट क्या बोले? नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। विल डिस्कस दिस थिंग बिकॉज लास्ट मॉड्यूल में ये सारी चीजें हैं। ओके, बट अभी के लिए हम आपको बता, मतलब जस्ट पूछ रहे थे कि ये पता है कि नहीं। ठीक, पढ़े थे सर। यस सर, लेकिन भूल गए हैं। कोई बात नहीं, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड। हम क्या इतना बोल, याद है कि सर इनपुट देते थे और आउटपुट निकालते थे, ए बी का सुनो टर्म में सुनो, देते थे इनपुट हाँ और हाँ फिर हाँ जगह हाँ, से आउटपुट। उसी टाइप की चीजें। पहले सुनो, देखो अभी आपको हम एक सर्किट दिखा रहे हैं, ठीक है? क्या काम करता है उसके लिए आपको दिखा रहे हैं। ये देखो, ये एक सर्किट है, ठीक है? ओके, इसका नाम है, मतलब एक आईसी है, एक सर्किट है, इसका नाम है 555 टाइमर। ये बहुत तरह का फंक्शन, ये बहुत तरह चीजें इससे बनाया जा सकता है, ठीक है? इसके अंदर के सर्किट देखो, इतने सारे ट्रांजिस्टर, ये वो ऐसे लगा हुआ है, ठीक? एक ट्रांजिस्टर है ना, एक कंपैरेटर है, ये फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, कुछ आउटपुट ड्राइवर लगा हुआ है। ओके, ये और बड़ा है, ठीक है? ये ब्लॉक में दिखाया हुआ ऐसा, ये और बड़ा है, देखो ऐसा है, एक्चुअल में ऐसा है, ठीक? अब यही चीज बार बार हम बनाएंगे इतना सारा कंपोनेंट यूज करके, तो एक टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस ये सारे लोग इतना, मतलब क्या बोलते हैं, यही चीज को बार बार काम हम क्यों करेंगे? तो हम एक ऐसा चीज बनाएंगे जो चीज, मतलब ब्लॉक की तरह हम उसको यूज करें और बार बार यूज करें, है ना?
तो ये टोटल सर्किट एक छोटे से चिप पे डिजाइन करके आपको कैसा बना दिया गया, इस तरह से। देखो ये, ओके, इसी को बोलते हैं आईसी। अब ये जो सर्किट था इसके अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन का बार बार वो काम कर, जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट देगा बार बार। ओके, तो जब भी आपको जरूरत पड़ेगा इस तरह का कोई फंक्शन करने का, जैसे आप मोबाइल में जैसे आप टच करते हो, ठीक है, या कोई चीज मतलब टच स्क्रीन जो टच करते हो, वो इनपुट्स कहाँ जाता है, किसी आईसी के पास ही जाता होगा। इतना बड़ा बोर्ड देखते हो ना जिसमें छोटे 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 ऐसे कंपोनेंट लगा रहता है, उसके अंदर बहुत सारे सर्किटरी है ऑलरेडी। अगर ये सर्किट को हम छोटा नहीं करेंगे तो हम इतना बड़ा एक बोर्ड लेके कहाँ घूमते रहेंगे बताओ। देखो इतना बड़ा, तब तो एक रूम भर का कैम, अगर मोबाइल बनाना होगा तो एक रूम भर हो जाएगा। तो वो चीज चाहिए क्या हमको, कोई यूज करेगा उसको। तो बेसिक थिंग इज कि इतने बड़े सर्किट को, अगर हम इतने बड़े सर्किट को, देखो ऐसा है, बाहर से आपको ऐसा दिखे, ये अंदर ऐसे पूरा पैक्ड हो गया। अब इनपुट में जो पिंस दिख रहे थे ना, ऐसे ऐसे पिंस, वो ये चीज है। ओके, इस तरह के पिंस आपको दिखे। आपको पता है कि पिन नंबर 1 पे क्या है, पिन नंबर 6 पे क्या है, पिन नंबर 2 पे क्या है, पिन नंबर 4 पे, लाइक दैट। ओके, और इसके अंदर ये इतनी सारी चीजें हैं, मतलब इतने सारे कंपोनेंट, ये ट्रांजिस्टर है इस तरह से, ये रजिस्टर है, डायोड्स है। ओके, इतने सारे कंपोनेंट एक छोटे से सेमीकंडक्टर मटेरियल पे बिल्ड किया गया है। ओके, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब ये टास्क, ये वाला जो हम पिक्चर दिखा रहे हैं, ये 555 टाइमर का, ये क्या करता है, बहुत सारा चीज हम इससे बना सकते हैं, बहुत सारे सर्किट में ये चीज लगता है। जैसे ऑसिलेटर बना सकते हैं, जैसे मल्टी वाइब्रेटर बना सकते हैं, जैसे और भी बहुत सारी चीजें इससे डिजाइन कर सकते हैं, है ना। कोई अगर आपको ऐसा मतलब वेव शेप चाहिए सिग्नल का तो ऐसा बना सकते हैं, ऐसा वेव शेप चाहिए सिग्नल का तो ऐसा बना सकते हैं, ऐसा साइनसोइडल टाइप का चाहिए तो साइनसोइडल बना सकते हैं। ये 555 टाइमर आपके लिए बहुत कुछ काम करेगा। तो जब भी आपको ऐसा कुछ जरूरत होगा अपने सर्किट के लिए, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट के लिए, तो आप डायरेक्ट आईसी लेकर आओगे ना, कि आप इतना बड़ा सर्किट बनाते बैठे, ये बताओ, है ना। तो जो आपका आईसी है वो वेरियस तरीके से काम कर रहा है और वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करता है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट जो आईसी है वो डिफरेंट डिफरेंट काम करेगा। आईसी मतलब क्या, एक बहुत बड़ा सर्किट को एक छोटे से सर्किट में बनाया गया, दैट इज कॉल्ड आईसी। समझ गए। यस सर। ये अभी भी कोई डाउट है, डाउट है तो बोलो। अरे बोलो, बोलिए। सर No, आईसी sir. का कोई स्पेसिफिक डायमेंशन भी होता है क्या सर? नहीं, इट विल डिपेंड्स अपॉन कितना बड़ा वो सर्किट है, कोई स्पेसिफिक डायमेंशन नहीं बाबू। अभी आप इतनी ही समझो, ठीक है। ओके, ये जो देख रहे हो आप, वो जो सर्किट में दिखाया इसी के अंदर है पूरा। ओके, जो जितने भी ट्रांजिस्टर वो दिखाए थे हम, ये बनने के बाद ये ऐसा दिखेगा ऊपर से। गॉट द पॉइंट। Yes, sir. अब पूछ रहे हो कि क्या काम आएगा, क्या काम में नहीं आएगा, ये पूछो कि सर इसका यूज कहाँ नहीं है। हर जगह यूज हो। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खोलोगे और आपको आईसी नजर आएगा।
रेक्टिफायर जानते हो? रेक्टिफायर रेक्टिफायर सर्किट पता है? यस सर। पता है ना क्या होता है रेक्टिफायर? यस सर। क्या होता है रेक्टिफायर? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है हाँ, एसी को डीसी में कन्वर्ट सर। करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट। हाँ, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है? उसके लिए तो सर्किट बनेगा ना, है ना? तो 4 डायोड लगते हैं, एक डायोड ऐसे करके 4 डायोड लगते हैं उस चीज को परफॉर्म करने के लिए, है ना? अब मान लेते हैं कि ये चारों डायोड को एक ही जगह पे बिल्ड करके तुमको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जाए कि बस यहाँ से तुम एसी दो और यहाँ से तुम डीसी तुमको मिलेगा। तो तुम कौन सा खरीदोगे? ये 4 डायोड खरीद के जोड़ोगे कि ये वाला जाके खरीदोगे? बोलो। स्मॉल वाला लेंगे, एक वाला। यही खरीदोगे ना कि हाँ एक छोटा सा चीज खरीदे, यहाँ पे एसी दे दे और यहाँ से हमको डीसी मिल जाए। इसके अंदर कैसे कर रहा है हमको उतना लेना देना नहीं है। अरे लेमैन के लिए इतना लेना देना है क्या? उसको क्या चाहिए कि भैया मैं एसी दूं और मेरे को डीसी मिल जाए। इसके अंदर क्या हो रहा है तुम ही समझो। ओके, एक है कि स्पेस कम लेगा, दूसरा कि यू इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन से आप बच पाओगे, राइट? सो इसी तरह से जैसे ये एक रेक्टिफिकेशन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक आईसी मतलब होता है, उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रेजेंट है उसको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आईसी बनाया जाता है। आप जाके मांगोगे दुकान वाले से एक रेक्टिफायर वाला आईसी तो तुमको रेक्टिफायर देगा, एम्पलीफायर वाला आईसी मांगोगे एम्पलीफायर वाला आईसी देगा, ये 555 टाइमर मांगोगे तो अलग देगा, है ना? इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट आईसीज का मतलब जरूरत है और बनाया गया है, राइट? नाउ वी हैव ओनली हैविंग 1 मिनट। अटेंडेंस ले लो बाबू फटाक से, फिर कट जाएगा और मेरे को भेज देना आज का अटेंडेंस। हम फिर वो लिंक में अभी शेयर कर दे रहे हैं, आप बना देना, अभी तो कट ही जाएगा। एक बार कनेक्ट करना